Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is about crossing boundaries, ecumenical, world and global history. The subject we have already studying about a global history. Now this topic is by Bruce Majlish, and Bruce Majlish is discussing about that it is also true that meaning of word is historically determined, often changing over time. Words are ambiguous and confused history with them. The word cleave in English means both to separate. How to separate? That as done by a butcher's knife, and to touch cling as in lovers embracing. Now, what is the discussion? Bruce Majlish says that words can mean anything. We say that they mean, but if our use of them is so ideologistic as to convey little or no meaning to anyone else, they will fail as means of communication. It is also true that the meaning of words is historically determined, often changing over time. For the time being, words are ambiguous, trailing their disorderly and confused history with them. Thus, the words cleave in English mean separate. How to separate? As done by a butcher's knife. Now, in this, the discussion of writer is that the historical events, the past events and the history of the world is changing for the time being, and the different historians has discussed their different views about global history. Now, given the historical nature of words, historian must be especially careful in their usage in this essay. I want to look carefully at the words ecumenical words and global, specifically when they are used to modify the noun history. For in that context, these words appear to exist in a rather Humpty Dumpty-like world, marked by unusual ambiguity and messiness. It is hopeless to expect that single meaning will or should result from our inquiry. Now, but in the process of examining these three adjectives, we may hope to achieve greater conceptual clarity than now exists. Now, the historian is discussing about the whole world. How discussing? Now he is discussing that कि जो पूरी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर पास्ट इवेंट से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, एम्बिगुअस हैं। और जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम वहाँ पर एक नई चीज़ देखते हैं कि टोटल हिस्ट्री कंफ्यूज्ड है, मतलब कि कोई बात वहाँ पर हमें क्लियर नहीं बताई गई। अब हम स्टार्ट पढ़ते हैं हेरोडोटस से कि हेरोडोटस की थ्योरी और है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हिस्ट्री। फिर हम पढ़ते हैं स्पेंगलर को, टोइनबी को पढ़ते हैं, फिर हम ब्रूस की बात करते हैं। नाउ दे आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्यूज़। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन इंग्लिश मीन्स बोथ टू सेपरेट। अब हर बंदे की अपनी राय है, एज डन बाय बुचर नाइफ। अब ये एक रेफरेंस दे दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे हर किसी ने अपनी ही हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। बेसिकली कंफ्यूजन इज दैट। नाउ द नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल नेचर ऑफ वर्ड्स। नाउ वी आर टेलिंग अबाउट द नेचर ऑफ वर्ड्स, how to generate words, how to select words about history. Given the historical nature of words, historian must be especially careful in their usage. In this essay, I want to look carefully at the words
ecumenical words and global specifically when they are used to modify the noun history. Now first we are discussing about what is ecumenical. The basically meaning of ecumenical word is the environmental. And what is environmental? Environment means your atmosphere, आपका माहौल जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। जब से दुनिया बनी है तब से लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी एक हिस्ट्री चली आ रही है आगे। फॉर द टाइम बीइंग हाउ कैन दे सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस ग्लोब। नाउ फर्स्ट वी आर सेइंग दैट अबाउट, यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ डिस्कस किया नेचर के मुतालिक कि आई शैल बी आर्गुइंग that although the three terms are often used as synonyms, they in fact are distinguishable and embrace significantly different approaches to history. तीन लफ्ज़ जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लफ्ज़ कहा इकुमेनिकल। इकुमेनिकल के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें बहुत हद तक जिसे कहते हैं ना डिस्टिंग्विश हैं, बहुत सारी बातें हम माहौल के मुताबिक देखते हैं यहाँ पर। दे आर चेंज वन। नाउ यहाँ पर ये है कि देयर सीम्स लाइक दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देन नाउ एग्जिस्ट। पुराने वक्तों की निस्बत जो अब हिस्ट्री हम देख रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी पाई जाती है। ठीक है, अब जो पहले की हिस्ट्री है वो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ हिस्टोरियन ने मुख्तलिफ बातें की हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि आई शैल बी आर्गुइंग दैट ऑल्दो द थ्री टर्म्स आर ऑफन यूज्ड एज सिनोनिम, दे इन फैक्ट आर डिस्टिंग्विशेबल एंड एम्ब्रेस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट अप्रोचेस टू हिस्ट्री। अब यहाँ पर आर्ग्यू कर रहा है ब्रूस क्या कि मैं मानता हूँ कि ये तीन टर्म्स यहाँ पर एक जैसी हैं, बट हकीकत ये है कि वो आपस में चेंज हैं अपने क्वालिटीज़ के हवाले से, अपने अप्रोचेस के हवाले से टू द हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री के हवाले से हम जब बात करते हैं वो यहाँ पर चेंज है। कौन सी तीन चीज़ें? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकुमेनिकल, एंड नंबर टू इज़ वर्ल्ड, एंड नंबर थ्री इज़ ग्लोबल। दीज थ्री थिंग्स आर डिस्कस्ड like adjectives. Now the historian says that admittedly there are important overlaps among the approaches which helps to disguise the fact that they have evolved in historically different circumstances. It is the differences that I shall be stressing. The Bruce is telling us about that yes, I admit the important overlaps among the approaches. I know that कि तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इकुमेनिकल भी, वर्ल्ड भी और ग्लोबल भी। लेकिन हम इन तीनों नाउन को जब डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ हिस्ट्री के मुताबिक इनको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है टाइम के साथ। नाउ द next process of examining it is hopeless to expect that single meaning will or should result from our inquiry, but in the process of examining these three adjectives we may hope to achieve greater conceptual clarity than now exists. First, I have discussed that there is arguing that although the three terms are often used as synonyms. Now यहाँ पर वो कहते हैं कि जो एग्जामाइनिंग का प्रोसेस है ये स्टार्ट से लेकर मीन्स हेरोडोटस से स्टार्ट होकर स्पेंगलर से होता, टोइनबी से होता, नेक्स्ट ये चला आ रहा है कंटिन्यूसली। अब ये जो प्रोसेस चला आ रहा है ये प्रोसेस भी हमें यही कंसेप्ट क्लियर कर रहा है कि जो हम एग्जामाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये भी इन तीन चीज़ों को मेंशन करता है, जिसमें
सबसे पहली चीज़ ये है, हम देखते हैं कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पर रीड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल, हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्पेसिफाइड किया जाता है, मीन्स ग्लोबल और इकुमेनिकल जैसे माहौलियाती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी बाउंड्रीज को नोट किया जा रहा है कि हाउ कैन वी लिमिटेड द बाउंड्रीज ऑफ ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स लाइक वर्ल्ड, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थी जो यहाँ पर आकर आबाद हुई, फिर उनके डिफरेंट कल्चर्स हमने देखे कि किस तरह से आबाद हुई, उनके रिलेशंस देखे गए, ठीक है, फिर उनके बारे में कुछ इंक्वायरी की गई, उनको हमने यहाँ पर देखा पढ़ा, ठीक है। और फिर यहाँ पर बेसिकली जो ब्रूस मैजलिस, वो यहाँ पर हमें इनका डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं कि हम इन्हें सेम एज इट पढ़ते तो आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट इवेंट्स, बट येट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ Bruce Magalish tells us about ecumenical history. Now what is ecumenical history? Means environmental history, according to our environment. He says what I am calling ecumenical history has as synonyms universal and world. Now the two words are synonym, same, similarities, like universal and world. Sometimes we call universal, sometimes we call the whole world. It claims to be universals, means if we say that what is world, we also said that universal, because it assumes that all human activity is under one guiding principle and can be told as one story. Now there is a little bit, rarely if ever global, यानी कि मुकम्मल ग्लोबल की हम बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम सब के लिए यूनिवर्सल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ह्यूमन्स एक्टिविटी भी आ जाती हैं, लिविंग नॉन लिविंग के जो बिहेव है, मीन्स उनकी इंटरेक्शन है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं, और जितने उनके रूल्स हैं, असूल हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ ये कहता है बिकॉज इट एज्यूम्स ऑल दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज अंडर वन गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कैन बी टोल्ड एज वन स्टोरी। जितने भी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी उनके मामलात हैं, रिलेशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो तमाम क्या हैं, एक ही असूल पर अमल पैरा हैं। मतलब कि तमाम लोग आते हैं, बनते हैं, दुनिया में पैदा होते हैं, फिर सरवाइव करते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं, उनके कल्चर, उनका लिविंग स्टाइल, उनका खाना पीना, चलना, ठीक है, और उसके बाद उनकी डेथ का होना, उनका डिक्लाइन का होना, ये तमाम चीज़ें ऐसे शो कर रही हैं जैसे एक ही किस्म के प्रिंसिपल तमाम चीज़ें चल रही हों, एक ही असूल पर सब लोग अमल पैरा हों। नेक्स्ट है, थस यहाँ पर एक राइटर की हम बात करेंगे कि बोसूट wrote his discourse on universal history through enormous parts of the globe were known to him. Now he is telling that he known many things, but he says that numerous parts of the globe were unknown to him. बहुत सारे ऐसे एरिया, हमने बहुत कुछ पढ़ा, हिस्ट्री में बहुत रिसर्च की, बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन वो कहता है उसके बावजूद ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है या ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं दुनिया के जिनके बारे में अभी तक वो बेखबर हैं, जिनके बारे में वो नहीं अच्छी तरह से जानते। नाउ द गाइडिंग प्रिंसिपल इज इन हिज केस वाज प्रोविडेंस और गॉड। अब जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो गाइडिंग रूल है या जो गाइडिंग असूल है, वो ऐसा फील होता है इस मामले में जैसे कि या तो कोई गॉड है या कोई ऐसी नेचुरल फोर्स है जो इस सारे सिस्टम को ड्राइव कर रही है। नाउ
The next one is originally religious in conception. Now there is a debate about religious conception. First of all, we will discuss that what is religious, that faith, our belief, our concern, our thoughts, our ideas, and now conception about religious. What is conception? Conception means that how you appeal, how you believe on your faith, how deep you have. Now such ecumenical histories were originally religious in conception, appealing, for example, to a Jewish or Christians or Islamic God, means Allah subhanahu wa ta'ala. Now Marx was more sophisticated than suggested above and embraced 4 different variants of history. फर्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इकुमेनिकल हिस्ट्री है ओरिजिनली रिलीजियस इन कंसेप्शन है, अपीलिंग है, फॉर एग्जांपल टू अ जूइश, मतलब ज्यूज़ का जो बिलीव है उनकी बात करेंगे, या क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है, उनकी बात करेंगे, या फिर मुसलमानों की इस्लामिक गॉड जो है उनकी बात करेंगे. अब वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मार्क्स है, मार्क्स मीन कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स बेसिकली he gave a theory about sociology, socialism. Like he says that there is a unequal distribution of wealth in this world, and he also divided the class distinctions. He gave the class distinction lies upper class, middle class, and lower class. He says that the upper class enjoying all the things, all the facilities, all the comfort of life, but lower class can't. Now they were more sophisticated than suggested above. According to our previous histories, the Marx gave sophisticated history and embraced 4 different variants of history, and he gave 4 different aspects of history, 4 different parts of history. Now he is telling that appealing, for example, to a Jewish, Christian, or Islamic gods, ecumenical history, however, could equally be secularized in Hegel and his ordering principle of reason, making its way through time. Even more materialized, of course, is Marx and his communism as the riddle of history solved. Now यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कार्ल मार्क्स है उसने पुराने हिस्टोरियन की निस्बत हिस्ट्री को जो डिवाइड किया है, एक तो सबसे पहले उसने यहाँ पर ये बता दिया है इनकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखती है, और उसने इसी तरह इन थ्योरीज के ज़रिए रिडल ऑफ हिस्ट्री उसको सॉल्व कर दिया. मतलब हिस्ट्री के जो पेचीदा मामलात थे उनको यहाँ पर उसने सॉल्व कर दिया है. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट all such ecumenical histories bear within them the prophetic strain and speak of a known ending. known ending means कि यहाँ तक का जो प्रोसेस था उसमें कोई ना कोई बात को आगे लेकर मार्क्स ने आगे अपनी एक थ्योरीज बनाई हैं, सजेशंस दी हैं, जिसमें उसने जिक्र किया है कि 4 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ हिस्ट्री, जिनमें वो कहते हैं हम इन्हें अगर गौर से देखें तो हम इसमें देखते हैं कि एट द वर्ड ecumenical itself, it comes from the Greek meaning. Greek meaning means inhabited. Inhabited word जो already created है from forefathers, from the very beginning of the whole world. Now first, a secondary definition, however, is tending towards worldwide Christian unity, which meaning is to determine. The first will take us closer to world history. The second remains firmly in what I am calling ecumenical history. All the things. Now, the next we have to discuss that Paul Costello. Who is Paul Costello?
Now still there is confusion is rampant, like thus Paul Costello in his treatment of a number of world historians. His examples like Spengler, Toynbee, Dawson, Sorokin, Mumford, M.C. Neil and H.G. Wells. Quite a mixed bag tells us that world histories are almost inevitably and eschatology, while also informing us that world historians are guided in their mission by the ecumenical ideal. अब इस पूरे एरिया में हमें यह बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पॉल कॉस्टेलो दैट के हिस्टोरियन ने जो ट्रीट किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को वो किस वे में किया है। सबसे पहले तो किया किसने, स्पेंगलर है, टॉइनबी है, डॉडसन है या अदर नेम्स हैं यहाँ पर। तो हाउ दे कैन ट्रीट द वर्ल्ड, दे यूज अ टर्म एसहेटोलॉजी। एसहेटोलॉजी मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आते हैं, लाइफ को सरवाइव करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर अपने काम और ड्यूटी टाइम पूरा करके मर जाते हैं। मतलब उन्हें जवाल भी होता है, मरना भी होता है, उनके कल्चर भी होते हैं, उनका स्टाइल भी होता है, इन तमाम चीज़ों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। वाइल ऑल्सो इन्फॉर्मिंग अस दैट वर्ल्ड हिस्टोरियन आर गाइडेड देयर मिशन। वर्ल्ड हिस्टोरियन ने हमें गाइड किया है कि जी उनका मिशन जो सर्कल है, लाइफ सर्कल है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू इकुमेनिकल मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर इन्वायरमेंट। Then he also characterized his chosen world historian as cyclical in their conception. He told us that this is cyclical conception according to those historians. Now he says that is it possible that these are contradictory positions? क्या इनकी बातों में हमें कहीं थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन नज़र आता है या कोई प्रॉब्लम नज़र आती है? नौ देखते हैं। एस्केटोलॉजी conceives of an end and as we have noted is generally associated with a more or less religious vision of final events. Now he tells us that कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जवाल भी हैं, डिक्लाइंस भी हैं, डेथ भी हैं, बॉर्न भी हैं, लिविंग भी हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा ये मखलूक रिलीजियस विजन के साथ या इनके जो फाइनल इवेंट्स हैं उनके साथ लिंक है। मीन्स सबका अकीदा है कि हम सब ने मरना है। इसी तरह सबका अकीदा है कि जी हम पैदा होकर आए हैं, फिर हम इस दुनिया में सर्वाइव करना है, रहना है। तो तमाम चीज़ों को रहना है जो भी जानदार यहाँ पर आए हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकीदा है और उसी अकीदे की बेस पर हमने उनको रिलीजियस के साथ अटैच किया हुआ है कि यस दे हैव a less or more religious vision. Okay, now this is shows their historical moments. Now is generally associated with a more or less religious vision of final events. Now these cyclical conceptions are a more pagan interpretations. Thus, as Charles points out, such a conception is opposed to the linearity of Christianity. अब यहाँ पर थोड़ा पैगनिज्म बता रहे हैं कि इसी तरह फिर आगे चलकर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स के काफर का कंसेप्ट पैदा हुआ, फिर वहाँ से क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट पैदा हुआ। इफ़ वी लुक एट recent world historians such as Spengler and Toynbee, we see that they are really ecumenical historians given to prophecy and final ends, but employing a cyclical scheme to make their points. Now, there is telling us on civilization, our focus on civilization. How? According to Spengler and Toynbee, they tells us about the prophecy, about history, and the final ends of organisms. Their scheme, they're employing a cyclical scheme to make their points. How they point out the cyclical scheme? Like ecosystem. We believe that there is an ecosystem in a globe
in a global world, or we can say that according to world history, according to past events, we say that there are much more differences, but as a one time they are same. The other thing to note is that they focus on civilization. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वर्ल्ड है वो डिस्कस करता है सिविलाइजेशन पर, ठीक है, और ग्लोबल जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिविलाइजेशन पर डिस्कस करती है, और जो ग्लोबल हिस्ट्री है वो डिस्कस करती है उनके कल्चर पर, उनके लिविंग पर, उनके रिलीजियस पर, उनके सर्वाइवल आप कह सकते हैं. नाउ यहाँ पर द अदर थिंग इज नोटेड इज दैट दे फोकस ऑन सिविलाइजेशन. Focus on civilization according to Spengler and Toynbee. ठीक है, these are the end stages of what he calls cultures, as if these were organisms given to birth, growth, decline and death. As such, they are treated as separate from one another, more or less close entities, because Spengler and Toynbee treat such entities as equal. Now we can see that कि यहाँ पर स्पेंगलर और टॉयनबी तमाम चीज़ों को सेम वे में ट्रीट किया है. उन्होंने इनको डिफ़र नहीं किया, अब हमें चेंज नहीं किया. उन्होंने कहा ठीक है जी, जिस क्लास का जो भी बंदा है, इंसान है, जानवर है, जो भी मखलूक है, उनका सेम ही वे में है कि जी आना है और यहाँ से चले जाना है. उसके बाद हाउएवर दे डू क्लेम, नाउ हाउ कैन दे क्लेम? अ क्लेम नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड इन प्रैक्टिस, एज अ क्लोज लुक वुड शो. Now what is close look? To bring an ecumenical attitude to what had otherwise been mere Eurocentric historiography. Now they discuss about Eurocentric historiography. Means के starting from Europe about living organisms, about the whole world discussions. The next is, what is Eurocentric historiography? Eurocentric historiography means, according to Spengler and Toynbee, they treat such entities as equal, however they do claim to bring an ecumenical attitude to what had otherwise been merely Eurocentric historiography. Without indulging in detailed discussion of Spengler and Toynbee, let us underline their lack of sympathy with the modern world. मतलब कि उन्होंने इस तरह का बिहेवियर अपनाया है थ्योरीज बनाते हुए, हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए, या हिस्ट्री को लिखते हुए, या हिस्ट्री की डिस्क्राइबिंग के अंदर, कि उन्होंने एक ही वे में बात किया और उसमें उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी. मीन्स के उनके मुताबिक कि जी हिस्ट्री मुकम्मल है, कि बस सब इसी तरह चलते हैं और इसमें कुछ और नई चीज़ नहीं है. मीन्स जैसे हम स्टाइल, डिक्शन, चीज़ें डिस्कस करते हैं इस मौजूदा दौर की, वो इसको नहीं मानते. वो कहते हैं कि बस ठीक है, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं बस वही एंड तक चलनी है. अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अलावा हम एक नई चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि डिसमिसल ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. अब एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, अब उसका डिसमिसल कैसे है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए. यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए एक थ्योरी दी गई है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. नाउ दे डिस्कस द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, श्योरली द मोस्ट फेकंड साइंटिफिक आइडिया ऑफ द 19th century. नाउ व्हाट इज दिस? सर्विंग एज एन एसेंशियल फ्रेमवर्क फॉर एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ व्हाट दे सेज दैट के इस थ्योरी की डिसमिसल के बाद, इसको यहाँ से ख़त्म करने के बाद इवेल्युएशन की नई थ्योरी आई, जिसमें मोस्ट साइंटिफिक आइडियाज़ का आगाज़ हुआ. न्यू आइडियाज़ पुट किए गए अकॉर्डिंग टू 19th century. देन सर्विंग एज एसेंशियल फ्रेमवर्क, और फिर उसके लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाया गया और उसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग की गई अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हाउ कैन ह्यूमन सर्वाइव. फॉर एग्जाम्पल, स्पेंगलर वॉज अ फॉलोवर ऑफ Gothic scientific work and nothing but scorn for Darwin. ओके, अब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पेंगलर है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि स्पेंगलर वाज अ फॉलोवर ऑफ गॉथिक साइंटिफिक वर्क. नाउ
and had nothing but scorn for Darwin. The English scientist he claimed had sacrificed Gothic nature theory to the 19th century cult of the useful and the material मीन्स कि उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू न्यू वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं मीन्स कि इनके बारे में लेटेस्ट रिसर्चेस की गई हैं हिस्ट्री के मुतालिक कि ना सिर्फ हम देखते हैं अपने हिस्ट्री के मुतालिक कि जैसे कोई बिल्डिंग देखते हैं हम उनमें से हमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगते हैं कि हाँ जी इनका ये कल्चर है या इस तरह यहाँ भी इंसान रहते हैं इंसान है उनका लिविंग सिस्टम है उनका खाना पीना है एंड देन देयर सर्वाइवल। अब मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि नहीं उनका कल्चर कैसा है उन कबाइल की ट्राइब्स की आपस में इंटरेक्शन कैसी है जो ह्यूमन वर्ल्ड के लोग हैं उनकी इंटरेक्शन कैसी है आपस में हम उनके बारे में यहाँ से डिस्कस करते हैं इसके बारे में मज़ीद हम अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं। नेक्स्ट द इंग्लिश साइंटिस्ट ही क्लेम्ड हैड सैक्रिफाइस्ड Goethe's nature theories to the 19th century cult of the useful and the materials. First, he is discussing that what is Goethe's nature. Goethe is basically poets which are lived in central Germany. मीन्स जर्मनी के रहने वाले थे पोइट थे। अब उनके बारे में इंग्लिश साइंटिस्ट ने मज़ीद रिसर्च की है और क्लेम किया कि उनकी सेक्रीफाइस वाकई है मतलब फॉर द टाइम बीइंग मुख्तलिफ लोगों के बीच में कंट्रीब्यूशन मौजूद है एंड 19th सेंचुरी कल्ट ऑफ द यूजफुल एंड द मटीरियल उन्होंने मज़ीद रिसर्चेस कर इसके बारे में न्यू मटीरियल प्रोड्यूस किया है। नाउ स्पेंगलर ऑफ कोर्स ऑफर्स नो डिस्कशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ डार्विन्स वर्क एंड क्लियरली हैज़ नो comprehension of the theory of evolution. Now what is this? He says that the situation is as bad in regard to physics. अब तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराने हिस्टोरियंस हैं उनकी बातों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें रिजेक्ट तो नहीं कह सकते बट यह है कि वो मटेरियल इतने ज़्यादा वे में हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। नाउ द लेटेस्ट रिसर्च हैव प्रूव्ड दैट द ओके देयर इज डार्विन वर्क yes there is a lot of discussion on it like Spengler, Toynbee, yes they have to work now and clearly has no comprehension of the theory of evolution. अब यहाँ पर उनकी क्या है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर कोई बात नहीं की गई और हम देखते हैं यहाँ पर कि फॉर द टाइम बीइंग द इंग्लिश साइंटिस्ट हैव रिसर्च्ड ऑन इट। नाउ व्हाट इज annihilating doubt? The discussion is that the situation is as bad in regard to physics. Convinced that physics was dissolving in annihilating doubt as evinced by probability theory, Spengler claimed that his theory of cycles made it possible to foresee the date when Western scientific thoughts shall have reached the limits of its evolution. Now first we say that the situation is as bad in regard to physics. Though Spengler was trained as a mathematician, convinced that physics was dissolving in annihilating doubt as evinced by probability theory, Spengler claimed that his theory of cycles made it possible to foresee the date when Western scientific thoughts shall have reached the limits of its evolution. As Gerald remind us in one of the handy chronological charts which Spengler put at the end of his book. He allows us to find that date. It is the year 2000. Well, of course, Spengler's prediction may come to pass, but at the moment it seems safe to say that his effort at world history appears to exist historically in a scientific vacuum. Now, first of all, we have to discuss about
Spengler, that Spengler is a mathematician who gave the theory are well, good, established, and he also reached the limits of its evolution. But there is a vacuum, scientific vacuum among the history. He said that it is the year 2012. Of course, Spengler's prediction may come to pass, mean कि किसी हद तक उसकी थ्योरीज ठीक हैं, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते कि पास्ट इवेंट के मुताबिक ठीक है, उस दौर में उतना ही काम होना था या उतना ही काम हुआ होगा जितना उन्होंने मतलब रिसर्चेज की हैं. बट टुडेज रिसर्चेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट. द केस इज इवन वर्स with Toynbee. And how can even worse? His understanding of the creative achievements of modern science can be measured by the names he cites. His outstanding spokesman to express the language of our modern Western physical science. Now the discussion is, according to Toynbee, अब जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है किससे, स्पेंगलर के साथ. अब जो उसकी मेजरमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, जो भी उसने साइट्स किए हैं यहाँ पर, हिज आउटस्टैंडिंग स्पोकमैन टू एक्सप्रेस द लैंग्वेज ऑफ आवर मॉडर्न वेस्टर्न फिजिकल साइंस. अब जो उनकी थीरीज हैं, जो उनकी बातें हैं, वाकई दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, अबाउट द होल ग्लोबल वर्ल्ड. एक्सप्रेस द लैंग्वेज ऑफ आवर मॉडर्न, यानी जो उनकी वर्डिंग है, जो उनकी थ्योरीज हैं, जो उनके अल्फाज हैं, वो काफ़ी हद तक मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मैच करते हैं. बट वो कहता है यहाँ पर फाइंड्स नो प्लेस इन टोइन्बी माइंड. दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग सिंस ही इज कमिटेड टू द व्यू दैट साइंस इज मेयरली अ ट्रांसलेशन ऑफ mythical language already known in a different form. Surely we need not expect, as historian of civilizations, to understand achievements such as those mentioned above in detail. Means that first we have discussed about all the theories like Marxism, like Toynbee theory, like Spengler theory, like Herodotus, they gave which are present. But we might hope for an awareness of them in his attitude towards modern science. अब हम क्या कहते हैं कि जो उनकी होप वगैरह है या अवेयरनेस है उन लोगों की, उन होप्स को हम आगे लेकर मज़ीद मॉडर्न साइंस के अंदर तरक्की करते हैं, मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं. बेसिकली ये होता है कि हमारी जो मॉडर्न साइंस है उसके अचीवमेंट्स यही है कि हम उनकी लैंग्वेज, उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज़, उनकी रिसर्चेस को लेकर आगे चलते हैं और तभी जाकर हम उन अचीवमेंट्स को अचीव कर पाते हैं, मतलब जो हमने नेक्स्ट थ्योरीज वगैरह आगे देखी हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ एनी रियल अंडरस्टैंडिंग. द फैक्ट इज दैट what Costello calls the world histories of Spengler, Toynbee and the like and fundamentally flawed by their lack of any real understanding of or sympathy with modernity and especially modern science and technology. Like, what is modern science and technology? अब यहाँ पर कोस्टेलो कहता है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री थे ना, स्पेंगलर की हिस्ट्रीज या टॉइनबी की हिस्ट्रीज, वो फंडामेंटली फ्लॉड तो कर लिया, लेकिन उनकी थ्योरीज हमें मतलब समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से, वहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा लैक है, हम लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, मतलब वो बातें उनकी जो हैं वो क्लियर नहीं हैं. अब यहाँ पर है ए लैक विच इज़ ईदर द रिजल्ट ऑफ देयर एंटी मॉडर्निज्म और लीड्स देम टू एन एंटी मॉडर्निस्ट सेंटेंस. As a result, I believe their work is fatally flawed, giving us little or no significant understanding of our modern world and its past. Now they are discussing that कि जो थ्योरीज उन्होंने हमें दी हैं, उन थ्योरीज का ताल्लुक हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की थ्योरीज के साथ या फिर उसके पास्ट के साथ काफ़ी हद तक बहुत कम मिलता है, क्योंकि हम
उनकी थ्योरीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी थ्योरी में कोई ऐसा ठोस मटेरियल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। एंड वी आर डिस्कसिंग दैट मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स पास्ट। व्हाट इज मॉडर्न वर्ल्ड? मॉडर्न वर्ल्ड मीन जो अब दौर हमारा मौजूद है, 18-19 सेंचुरी की बात करेंगे, हम अपने वक्त की बात करेंगे कि अब का जो दौर है, अब की जो दुनिया है, वो अपने पास्ट इवेंट्स के मुताबिक कैसी है। एंड इट्स पास्ट, अब मॉडर्न वर्ल्ड और उसका पास्ट, और स्पेंगलर और टोइनबी का पास्ट, देयर आर हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, a lack which is either the result, I believe their work is fatally flawed, giving us little or no significant understanding of our modern world and its parts। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो उनकी थ्योरीज हैं और जो हमारी थ्योरी है मॉडर्न वर्ल्ड की, या फिर उसके पास से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, उनके दरमियान में कोई अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मीन्स हम उनकी बातों को ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। Now we are discussing about Eurocentric elements. What are the Eurocentric elements? Only their visions of a history generally considered shorn of its Christian and Eurocentric elements. Thus, ecumenical worldwide remained as a positive contribution to the historiography। अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ठीक है, उन लोगों की बातें हैं, उनका कंसिडरेशन ठीक है, उनकी थ्योरीज जो उनके एलिमेंट्स हैं वो यूरोसेंट्रिक हैं, क्योंकि बेसिकली वो लोग बिलोंग करते थे इन एरियाज से जो नियर टू यूरोप थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो डिस्कस किया है उनके पॉजिटिव रिएक्शन के बारे में, पहले हम लोगों ने पढ़ा उनकी बाउंड्रीज के बारे में, फिर हमने पढ़ा इक्यूमेनिकल क्या होती है, वर्ल्ड क्या होता है, ग्लोबल हिस्ट्री क्या होती है। इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हमने इनका नाम डिस्कस किया, पता किया ये क्या है। फिर हमें ब्रूस मैजलिश ने बताया कि व्हाट इज इक्यूमेनिकल हिस्ट्री। ठीक है, वो किस चीज़ से उसका सिनोनिम है, यूनिवर्सल के साथ और वर्ल्ड के साथ क्या ताल्लुक है। और उसके बाद हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया, फिर गॉड, रिलीजियस, तीन तरह के रिलीजियस डिस्कस किए, रिलीजन, जूइश, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है मार्क्सिज्म को। मार्क्सिज्म के बाद हमने उनके बारे में डिस्कस किया है कि पॉल कस्टेलो में क्या कहता है। पॉल कस्टेलो के बाद हमने डिस्कस किया है यहाँ पर कंट्राडिक्शन, व्हाट आर द कंट्राडिक्शन बिटवीन द हिस्टोरियंस। And then, without indulging in detailed discussion of Spengler and Toynbee, underline the lack of sympathy with the modern world. That lack of understanding we have discussed. फिर हमने एवोल्यूशन को डिस्कस किया, ठीक है, और फिर हमने कुछ साइंटिफिकली वैक्यूम जो है दरमियान में उसको डिस्कस किया ड्यू टू टोइनबी एंड स्पेंगलर। फिर कॉस्टेलो ने हमें कहा कि जो वर्ल्ड हिस्टोरियंस हैं वो फंडामेंटली क्या है, लैक ऑफ एनी रियल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ना सिंपैथी है मॉडर्निटी के बारे में, वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने इनके यूरोसेंट्रिक एलिमेंट्स पढ़े, फिर उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पढ़ा अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। हमने पहले इक्यूमेनिकल हिस्ट्री पढ़ी है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्लोबल हिस्ट्री के बारे में। देन होपफुली अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग। फिर अगर कोई मतलब क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल आस्क इन कमेंट। थैंक, अल्लाह हाफिज़।